2. So in my previous classes I have already discussed question number 17. till question number 17 हमने clear किया है, and today we have to discuss question number 18. So what is the question number 18? Firstly, given the linear equation is given, यहाँ पे linear equation given है बेटा. Write another linear equation in two variable. We have to write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair so form is intersecting lines, right? One equation is given, we have to write the another equation, and what we know that there is a relation between coefficient. So by comparing the coefficient we can say that it will be intersecting, it will be parallel, or both will be coincide, both lines will be coincide. So first of all we have to write 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. That is the equation 1. We have to write another equation for intersecting line. And what is the condition for intersecting line? We know that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. This is the situation. It means we take the coefficient of x and y like that. When we get the value of a1 upon a2 and b1 upon b2, they should not be equal to each other. वो एक दूसरे के बराबर नहीं होने चाहिए. So that's why here if we take 3x and here if we take 2y minus 5 anything, 5 is equal to 0. That is the equation 2. Now you have to take the value. What is the value of a1? That is 2. What is the value of a2? That is 3. And what is the value of b1? That is 3. And what is the value of b2? That is 2. Now what we observe? 2 upon 3 is equal to 3 upon 2. No. So it means they are not equal to each other. It means a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So what we can say? They are intersecting. So if we have to write, you can write infinite number of linear equation in two variable where you will get what? Intersecting line. You can take 4, you can take 5, then also 2 upon 5, 3 upon 5, they are not equal to each other. Also that is the second linear pair equation, right? So this way, so what we have to write? One equation is given and we have to write another linear equation where we get they are intersecting line. So what can be another linear equation? 3x plus 2y minus 5 is equal to 0. ऐसे कितने इक्वेशंस आप राइट कर सकते हो? बहुत कर सकते हैं. आप यहाँ पे 5 ले लो, यहाँ पे 6 ले लो, दैट इज ओके, हो जाएगा. ओके. सेकेंड, पैरेलल लाइंस. सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन? व्हाट इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है? यू स्टैंड अप. क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, कृष्णांत. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. That is for parallel line. Is this right? That is for coincident. b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. It means if we have to write, if we follow this situation, so we can write what? So we can say that they are parallel lines. अब यहां पे क्या करना है? इसका कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए. क्या होना चाहिए? If we get the value of a1 upon a2 and b1 upon b2, the ratio of a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2. Clear? ये बात समझ में आई? The ratio of a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2. ये होना चाहिए. So if there is, for example, if there is 2x plus 3y,
So can we take also 2x plus 3y? Why? Can we take also 2x plus 3y? Why? Because 2 upon 2 is equal to 3 upon 3. Finally we get what? 1. अरे 1 is equal to 1. ये situation तो मिल गया. And after that should not be equal to C1 upon C2. Here is minus 8. You can take anything. 6. You can take 6. So now what we get? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, but minus here if we write 2 upon 2 is equal to 3 upon 3 is not equal to minus 8 upon 6. When you will write in lowest form also, they are not equal. It means B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. Is that clear? Any doubt? Any problem? Okay. Is it okay? Now next, for coincident lines, sit down. For coincident lines, now Naman, you stand up and tell me what is the situation for coincident line. Do it fast, beta. हाँ. Coincident line की क्या situation थी? Yes. Yes. A1 upon A2. A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2. इतना क्या सोचना है? अगर यही नहीं पता है, एटलीस्ट 5 मार्क्स इसमें आता है बच्चा. कम से कम 5 नंबर तो क्लियर करके रखो. दैट इज वेरी इजी. ओनली वी हैव टू प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स. We have to present the line where they are intersecting. What will be the nature of line? Where they are parallel? What will be the nature of line? ठीक है. बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आजकल गवर्नमेंट भी पता है इस टाइप के सिचुएशंस पे बहुत फोकस कर रही है, ग्राफिकल चीजों पे. ठीक है, बाई एक्टिविटी है ना, बाई एक्टिविटी करके सीखते हैं. दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. ओके, चलो ठीक है. सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. क्लियर है? सो ऑल्सो फर्स्ट इक्वेशन व्हाट कैन बी राइट? ऑल्सो वी कैन राइट 2x प्लस 3y माइनस 8. दोनों इक्वेशन सेम होंगे तो दोनों लाइन भी सेम होगी. This is the first situation. Second situation, we can write what? Multiply by 2 in all the numbers, or it means all the coefficient and constant. So we multiply by 2. What we get? 2 2s are 4x, 2 3s are 6y, 2 8s are 16 is equal to 0. Now 2 upon 4, 3 upon 6, and here minus 8 upon minus 16. जाके बोलो बिल पता है अभी नहीं ओवर हुई है, बिल बंद करें, सही से सेट करें दीपक से. 2 upon 4 is equal to 3 upon 6 is equal to minus 8 upon 16. So 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 8 1s are 8, 8 2s are. So each and every case is what we get? 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2. It means now we can say that A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. So for coincident lines, is that clear? मे भी पूछ सकता है, बहुत बार ऐसे पूछा जाता है. एक जनरल सा क्वेश्चन दे देगा, एमसीक्यू दे देगा, या कोई आपका शॉर्ट आंसर में दे देगा कि ठीक है एक इक्वेशन दिया गया, दूसरा इक्वेशन राइट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट का मार्क है. लेकिन फॉर द स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स उसमें क्या करेगा? आपका कोफिशिएंट क्या करेगा? वो आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में दे देगा. किस फॉर्म में दे देगा? फ्रैक्शनल फॉर्म में दे देगा. ठीक है, तो वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है. फ्रैक्शनल को क्या करते हैं? अरे फॉर एग्जांपल लेके सिचुएशन बताते हैं. देखो जरा, अगर फॉर एग्जांपल जस्ट अपने से मैं ले रहा हूं, अगर मैं ले रहा हूं x माइनस 2 अपॉन 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ भारवी, you stand up and tell me, if we have to write the another linear pair of equation when the lines are intersecting, so what will be the method? हम क्या करेंगे? फर्स्टली गलती हो गई इससे, तुम बताओ क्या सोचोगे?
फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, इस कंडीशन के लिए वी हैव टू राइट अनदर इक्वेशन फॉर इंटरसेक्टिंग। हाँ हाँ, इसने भी गलती कर दिया ना, वेरी गुड। क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रैक्शनल केसेस में कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे, जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सो दैट्स वाई व्हाट वी डू, वी टेक द एलसीएम। अगर दोनों साइड दिया गया है तो वी टेक द एलसीएम ऑफ बोथ साइड। व्हाट इज द एलसीएम, 3 is the LCM. What is the LCM? 3 is the LCM. So 1 3s are 3x minus 2y, and here what we get, 3 6 are 18 is equal to 0. After cross multiplication, what we get bachcha, 3x minus 2y plus 18 is equal to 0. Now after this, that is very easy to find out another linear pair of equation for coincident, for intersecting and for parallel. Clear? थोड़ा सा सोचो बिटिया, थोड़ा सा बढ़िया से, ठीक है, बैठो, ठीक है। So this was question number 18. Now we have to discuss 19. Graphically solve the following pair of equations. We have to solve graphically. Find the ratio of the areas of the two triangles formed by the lines representing the equation with the x-axis and the line with y-axis. It means क्या है, when you will draw, for example मैं draw करके दिखा रहा हूं, एक लाइन ऐसे गई, दूसरी लाइन समथिंग ऐसे आई, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम फर्स्टली इंटरसेक्टिंग पॉइंट इंडिकेट करते हैं, दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज सी एंड दैट इज डी। क्लियर? अब हमको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या पूछ रहा है, हमको क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। इट मींस वी हैव टू गेट टू एरिया। कितने एरियाज फाइंड करनी है, टू एरियाज, ठीक है। of the two triangle formed by the lines representing these equation with the x axis। जो दोनों लाइन है x एक्सिस के साथ कौन सा एरिया क्रिएट कर रही हैं, तो इजिली आप देख सकते हो कौन सा एरिया x एक्सिस के साथ क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज द एरिया। इट मींस वी हैव टू गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर? After that, with the x-axis and the lines with the y-axis and same line with the y-axis, now you can understand same line y-axis के साथ कौन सा एरिया मेंटेन कर रही है। So this is the y-axis, this is the y-axis, these are the lines. So this is the area. It means यहाँ पे ABCD, that is E if we are taking. So we have to get area of triangle BED. BED. Now we have to find the ratio. And one most important thing, रेशियो में क्या होता है, जिस सीक्वेंस में एरिया का रेशियो फाइंड करना है उसी सीक्वेंस में फाइंड करना, अदरवाइज आप मिस्टेक, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सब कुछ आते हुए भी आपका क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहां पे देखो क्या दिया गया, सीक्वेंस में क्या किया, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। तो फर्स्ट ट्रायंगल की एरिया कौन सी होगी, विथ एक्स एक्सिस वाली, इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एंड सेकेंड ट्रायंगल बीईडी, राइट? एंड यू नो दैट हाउ टू फाइंड द एरिया, we have to count the y-axis distance from this point to this point, and what will be the height. Now this is obtuse angle triangle, for example, when we draw the lines and they form obtuse angle triangle. So for obtuse angle triangle, where we get the height kahan milegi, obtuse angle triangle I have already told you. देखो जैसे for example
दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड दैट इज नेसेसरी. मैंने बोला दैट इज कंपल्सरी. यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी टेकिंग बेस एज बीसी. टेकिंग बेस एज बीसी, बीसी ही बेस लेना है. नाउ यू हैव टू गेट द एरिया. कैसे फाइंड करेंगे? वेयर वी गेट द हाइट. अब यहां से तो तिरछी हाइट आएगी नहीं, स्लैंट में पता है हाइट होती नहीं. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, इट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड हाइट. इफ आई हैव टू फाइंड आउट, फॉर एग्जांपल हमको फाइंड करना है इस छत की हाइट क्या है. ये जो है फ्लोर से लेके रूफ तक, इसकी हाइट क्या है. तो अब यहां से लेके वहां तक थोड़ी ना मेजर करेंगे हम क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है बच्चा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है. इज दैट क्लियर? सो हाउ कैन वी गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? दैट इज वेरी इजी. यही है, आप लोग ध्यान नहीं देते. वी प्रोड्यूस बीसी. क्या करेंगे हम? बीसी को क्या करेंगे? प्रोड्यूस कर देंगे एंड यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. सेम एज यहां पे ट्रायंगल बेस ले रहे हैं, क्या? ईडी ले रहे हैं. सो नाउ ट्रायंगल बीईडी क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. फॉर एग्जाम्पल मैंने वो सिचुएशन नहीं ड्रॉ करी है, दैट इज हाइपोथेटिकल. मैंने अपने से लिया कि ऐसा समथिंग केस एराइज होगा, राइट? सो व्हाट विल बी द हाइट? तो बेटा ये जो हाइट होगा यही डिस्टेंस क्या होगा? हाइट होगा. समझ में आया? एक्सटर्नल होगा. तो ये नहीं है कि नहीं ये एक्सटर्नल हो गया तो कैसे यार, फिर आप बेस यहां तक काउंट कर लो. नहीं, बेस ईडी ही रहेगा. क्या रहेगा? ईडी ही रहेगा. बस हाइट यहां से यहां तक. इसको भी हमको थोड़ा सीखना और ज्यादा है, ठीक है? सो बीई क्या है? हाइट है. तो बेस एक्सटेंड नहीं होगा, बेस क्या होगा? ईडी ही होगा. बट यहां से यहां तक जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस होगा, जैसे यहां तक है तो कितना डिस्टेंस होगा? 4 यूनिट होगा, राइट? सो आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. डॉक्टर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाँ, कितने दिन एब्सेंट थे बेटा? कितने दिन आए हो? अभी कितने दिन स्कूल चला है? कितने दिन आए हो तब से? कल आए बस. पढ़ना लिखना है कि नहीं है? अरे दादा ठीक है, दादा एक्सपायर हो गया, नो प्रॉब्लम, उसके लिए ठीक है भाई, सबको अफसोस है. लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप पता है 2 दिन से ज़्यादा, ठीक है, जिस दिन कोई ट्रेजेडी होती नहीं आता, अगले दिन भी नहीं आता, आगे चल के आपका जो भी होता है उसमें ठीक है नहीं आता. लेकिन अब जब से हुआ है तब से लेके उतना 13-14 दिन का गैप करोगे तो कहाँ से होगा? बस समझ में आई? तो बेटा कल से बिल्कुल गैप नहीं. अगर गैप है तो आपको पेरेंट्स को लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज हम अलाउ नहीं करेंगे. हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा. दिस इज नारायण पब्लिक स्कूल, ठीक है? चलो नेक्स्ट. ये समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस. व्हाट इज द सिचुएशन? Determine graphically the vertices of the triangle formed by the lines. Vertices of the triangle formed by the lines. Anmol, look here. So, if we have to draw the line for y is equal to x, so also we can write what? This equation. Also we can write x minus y is equal to 0. This is the equation 1. Second one, x minus 3y is equal to 0, second equation. And third one is the x plus y is equal to 8. That is the equation third. First of all, we change the equation in the form of general form of linear pair of the equations. Linear pair of two variable ना, उसको a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, या कांस्टेंट को आप इज इक्वल टू के बाद भी राइट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. आफ्टर दैट वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. तो क्या करेंगे? वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट. सिमिलरली फॉर सेकेंड एंड थर्ड ऑल्सो. इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट वी हैव टू प्लॉट दोज पॉइंट्स on the graph paper. So we get 3 separate lines.
जैसा भी मिले सेपरेट हो सकता है दो कोइंसाइड कर जाए, एक इंटरसेक्टिंग हो। तो जो ट्रायंगल फॉर्म होगा इंक्लूडिंग दीज लाइंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं क्या, एक लाइन बेटा ऐसे हो गई, दूसरी लाइन क्या हो गई, ऐसे चली गई, एंड तीसरी लाइन की सिचुएशन समथिंग ऐसे हो गई। तो ट्रायंगल कहां फॉर्म हुआ, 1 A B C, ABC। वी हैव टू राइट द वर्टिसेस, क्या लिखना है उसका, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट लिखना है, नहीं, हाँ, वर्टिसेस, द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड आउट। तो आ जाएगा, ये आ जाएगा सबको, रेज योर हैंड, किसको किसको आ जाएगा, तुमको नहीं आएगा, क्या कर रही हो, तुमको समझ ही नहीं रही हो, चलो ठीक है बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, draw the graph of the equation x is equal to 3, x is equal to 5। now अनमोल यू stand up, x is equal to 3 के लिए ग्राफ बताओ, come and draw, x is equal to 3 के लिए ग्राफ ड्रॉ करो विद इन 30 सेकेंड, x is equal to 3 के लिए ग्राफ ड्रॉ करो। x is equal to 3, that is the linear equation, linear equation। so हाँ, so we have to draw a line। हाँ तो करो ना, हमको लाइन चाहिए, उसकी पॉइंट नहीं चाहिए। ये लाइन होगी, अंश यू कम हियर, बखाने दिया, अब मैं नहीं, मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूं, मैंने यही सिचुएशन कितनी बार आपको एक्सप्लेन करी है। x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 के लिए लाई ऑन y एक्सिस होगा, y इज इक्वल टू 0 के लिए लाई ऑन x एक्सिस होगा, बट x इज इक्वल टू किसी भी वैल्यू के लिए पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, यस। तो तुम लोग जाओ बैठो, गधा बन गए हो। x इज इक्वल टू 3 के लिए बेटा लाइन का क्या होगा, लाइन जो होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी। एंड x इज इक्वल टू 5 के लिए अगेन पैरेलल टू y एक्सिस, बट इट विल गो थ्रू एट पॉइंट 5 एंड 0। समझ में आया। और इसके बाद यही है, यही छोटी छोटी गलतियां करते हैं, बहुत बड़ी गलती नहीं है इसमें, ये नहीं है कि नहीं यार मैं तो नहीं कर पाया, ऐसा नहीं है। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, आप बहुत अच्छे हो, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट बेटा, कि ये तो हम गलती कहाँ करते हैं, जब क्वेश्चन से देखते हैं और देख के ये समझ लेते हैं अरे ये तो मुझे आ गया, वही हमारी गलती है। आ गया तो ठीक है, 1 मिनट और लगेगा, लिखने की प्रैक्टिस कर लो, हो सकता है उसमें कुछ वर्ड मीनिंग से क्लियर हो जाए। जैसे वो एक दिन मैंने आंसर से पूछा कॉन्साइडेंट, वो बोला कि अरे सर ठीक है कॉन्साइडेंट, अरे तो कॉन्साइडेंट होगी, मैंने कहा कि ठीक है, तो बोला कि सर नहीं करूं, फिर मैंने कहा कॉन्साइडेंट की स्पेलिंग बता, गलत बताया। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी पर्टिकुलर को इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, यू आर इन हाई स्कूल बच्चा, जो हमारा अनुभव है, जो हमने गलतियां करी है, मैं वो नहीं चाहता कि आप गलती करो, इसलिए जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो कहते नहीं हमारा खुद का एक्सपीरियंस है जो आपसे हम शेयर कर रहे हैं। हम गलती कहाँ करते थे, हम भी ऐसी गलती करते थे, अरे ठीक है देख लिया, हो गया, आ गया, लेकिन लिखने का तरीका, कितने टाइम, कितने मिनट में हमको कितना सॉल्यूशन देना है, अगर शॉर्ट आंसर टाइम में है तो कैसा लिखना है, लॉन्ग आंसर में है तो कैसा लिखना है, मतलब एक जो टॉपर आंसर राइटिंग होती है उसका वे क्या आएगा, वो तभी आएगा जब आप लिखना ज्यादा करोगे, राइटिंग ज्यादा करोगे। अननेसेसरी देख लिया, हाँ सॉल्यूशन चाहिए, तो उससे क्या होगा, तब आप टॉपर आंसर राइटिंग कर सकते हो। जो देखते नहीं हो आप लोगों के अनसॉल्व पेपर पे लिखा रहता है व्हाइट में, क्या होता है कि एक इमेज उसमें रहती है, उस पे लिखा रहता है टॉपर आंसर राइटिंग। नाउ जस्ट चेक द सॉल्यूशन, बहुत सटीक होता है वो। तो सटीक कैसे होता है, जैसे एक स्टेटमेंट,
हम एक आपको पूरा पैराग्राफ दे दे, एक पैराग्राफ दे दे, नाउ यू हैव टू राइट द मोरल ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट टाइम व्हेन यू विल राइट द मोरल ऑफ स्टोरी लगभग बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन हो, बट सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, तो जब आप मोर टाइम उसको राइट करोगे तो आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज विद इन सम वर्ड आप उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, उसी को क्या कहते हैं, एक रसखान कहें कि अब हिंदी में नहीं जानते, गागर में सागर भरना, मतलब बहुत बड़ी चीज को हम बहुत छोटी ही चीज में एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन बताए, तो वो कैसे आएगा? आंसर राइटिंग। ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन इट। और ये अभी नहीं, इन फ्यूचर जहां भी है, जब तक आप पढ़ोगे यही वर्क ज्यादा करना है। आज हमारा क्या है, हम चेयर पे लेटे हैं, अरे ये ठीक है आ गया पलटो, ऐसा नहीं करना है। अगर लाइफ में कुछ करना है तो ये आदत छोड़ो, बुक देख के ये मत जस्टिफाई मत हो कि ये हमको आता है, करना है, आता है फिर भी करना है, ठीक है, ओके। चलो, तो ये समझ में आया, x इज इक्वल टू 3, व्हाट विल बी द ग्राफ? दिस विल बी पैरेलल टू y एक्सिस फ्रॉम 3 0, x is equal to 5, it will be parallel to y axis, but from point 5 0, and 2x minus 5, 2x minus y minus 4 is equal to 0, इसका भी एक ग्राफ, एक लाइन होगी। तो क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द लाइन एंड द एक्स एक्सिस, फॉर्म बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस, एक थर्ड लाइन भी होगी, तो वहां पे क्या होगा, जो लाइन हैं और एक्स एक्सिस को इंक्लूड करके एक क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, तभी तो लिखा है वी हैव टू फाइंड द व्हाट, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा, क्या करना है, अगर पैरेललोग्राम आता है तो व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? तन्मय, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितने लोग बता सकते हैं? या एक मिनट, श्रेया यू टेल मी व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? नाउ आंसर, यू स्टैंड अप, बोल के फंस गए तुम सम ऑफ। हाँ, बेस इंटू हाइट, हाइट या परपेंडिकुलर बोल दो, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम आ गया बेटा तो बेस इंटू हाइट, ट्रेपेजियम आ गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, रेक्टेंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, सो वी नो एवरीथिंग, वी कैन फाइंड आउट, वी कैन फाइंड आउट, एनी प्रॉब्लम? ओके, सो this was question number 21. Sit down please. Next, question number 22, draw the graph of the line x is equal to -2 and y is equal to 3. Now जो मैंने आपको बोला है फिर एक एग्जांपल दे। नाउ अनमोल यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन। अब देखो आया कि नहीं, जब एक बार ऊपर होती है ना, गुजरती है, तो वो एक सीख बन जाती है, अब नहीं गलती करेंगे। तो x इज इक्वल टू -2 का क्या होगा नैतिक, तुम बता दो बेटा, कहां से जाएगी लाइन, जल्दी बताओ। x इज इक्वल टू -2, हाँ, x एक्सिस कहां से जाएगी? चलो अनिकेत, इस साइड से, कहां से? यस, -2 से, ओके। ऐसे जाएगी कि ऐसे जाएगी? ओके, वेरी गुड, सिट डाउन बेटा, आज मैं तुमको एक चॉकलेट दूंगा, डोंट वरी, आई अप्रिसिएट यू कि तुमने बताया, बहुत अच्छा। दैट इज द लाइन L1, दिस इज द लाइन L1, ये लाइन L1 हुआ। आदित्य अभी सही पढ़ा रहा हूं? ठीक है, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू, लिसन, y इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ क्या होगा अंकिता? यू स्टैंड अप एंड टेल मी, कहां बनेगा? कम, y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ जस्ट यू हैव टू ड्रॉ। हाँ हाँ हाँ, सही है, राइट। अरे सीधा कर लो, रुक जाओ बिटिया, रुक जाओ, ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, अगेन यू हैव टू क्लिक हियर, ओके, हाँ, ओके, वेरी गुड।
y इज इक्वल टू 3, दैट विल बी अपसाइड, इट मीन्स y पे क्या है, कुछ नहीं करना है, इसका कोऑर्डिनेट जैसे ये है, देखो सीखने का तरीका कहां से जाएगी, x इज इक्वल टू -2 है फॉर एग्जाम्पल, इट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इफ x इज इक्वल टू -2 इट मीन्स कोऑर्डिनेट विल बी -2 and 0, तो पहले -2 and 0 चले जाओ, -2 and 0 पे पहुंच गए, हाँ ठीक है, -2 and 0 पे पहुंच गए। अब -2 and 0 पे पहुंचने के बाद क्या करना है, अगर क्या है x इज इक्वल टू -2 है, तो जो कोऑर्डिनेट जो लाइंस होगी, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 के लिए, x इज इक्वल टू 0 के लिए लाइन कोइंसाइड विथ y एक्सिस, होता है कि नहीं होता है, x इज इक्वल टू 0 के लिए, तो x इज इक्वल टू फॉर एनी कांस्टेंट या इंटीजर या कोई भी नंबर के लिए वो हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी। मैंने बताया है कैसे पैरेलल होगी, when we write this equation in we convert this linear equation in two variable, so what we write, x plus 0y is equal to -2, right? So we have to make the chart, x and y, we have to put the value of x or y, and we have to get the value of x or y। अगर y की वैल्यू मैंने क्या ली 1, x की वैल्यू क्या आई -2 आई, x की वैल्यू मैंने क्या लिया 2 लिया, तब भी क्या आया, y की वैल्यू मैंने 2 लिया तब भी क्या आया -2 आया कि नहीं आया, इट मीन्स व्हाट वी गेट, क्या कोऑर्डिनेट -21 -22 ऐसे ना, तो -21 यहां है, -22 यहां पे होगा -23 यहां पे होगा, so when we join these points, so we get a line which is parallel to y axis, right? After that what happened, after that write the vertices of the figure formed by these lines, the x axis and the y axis, find the area of the figure। जो फिगर फॉर्म होगा क्या करना है, क्या फिगर फॉर्म होगा, राइट द वर्टिसेज ऑफ द फिगर, अब जो फिगर फॉर्म हुआ बाय दीज लाइंस, द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, जो एक फिगर यहां पे बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, जो फिगर फॉर्म हुआ स्क्वायर होगा तो स्क्वायर बोलेंगे, रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल बोलेंगे, इज दैट क्लियर? एंड वी हैव ऑल्सो राइट द वर्टिसेज ऑफ द फिगर, मतलब इसका क्या होगा, वर्टिसेस क्या होगा, वी कैन राइट और नॉट, ओके। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, इफ दैट इज अ स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, इफ दैट इज अ रेक्टेंगल, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। तो यहां पे क्या है कि ये स्क्वायर या रेक्टेंगल हो सकता है, क्लियर है? चलो ठीक है, चलो बस इतना ही, बेल लग गई, ओके थैंक यू।